Okay, so hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 9th of November 2024 আৰু আজি আমি যোনটো আমাৰ আসাম পলিটি হয় that is political and administrative system of Assam তাৰ বিষয়ে আমি চাম। So already আমাৰ কেইটামান টপিক ইয়াত যদি চাই কভাৰ হৈ গৈছে যেনেকে আগৰ ক্লাছত যদি আপোনালোকে চাই আমাৰ গভৰ্ণৰ যোনটো টপিক আছিলে সেইটো আমাৰ কভাৰ হ'ল। তাৰ উপৰিও যদি চাই আপোনালোকে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যোনটো টপিক আছিলে সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত, ৰাইট? সো আজি আমি যোনটো টপিক হয় আমি আজি ষ্টেট এছেম্বলি বিষয়ে চাম, ঠিক আছে? বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় এছেম্বলি। তাৰপিছত আমাৰ তেনেকৈ ছাবচিকুৱেণ্ট ক্লাছত আমি লাহে লাহে এটা এটা টপিকে শেষ কৰিম, ঠিক আছে? চ' আৰু যদি আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব কমপ্লিট। আৰু যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন জানিব বিচাৰে আমাৰ কৰ্চেছবিলাকৰ বিষয়ে তাতো আপুনি চাব পাৰে। মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, ইউ কেন কণ্টেক্ট মি, হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে আপুনি। অ'কে, চ' ষ্টাৰ্টিং উইথ ষ্টেট এছেম্বলি। অ'কে, চ' এটা কথা এতিয়া জানি লওক যে আমাৰ ষ্টেট এছেম্বলি যোনটো হয় ডেট ইজ অলছ' দ্য পাৰ্ট 600 পৰে আমাৰ সংবিধানৰ, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 600 পৰে আণ্ডাৰ দ্য ষ্টেটছ। অ'কে, চ' ষ্টেট এছেম্বলি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে জাষ্ট এটা আমি তাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটা চাই লওঁ কেনেকৈ আমাৰ এছেম্বলিখন ইভল্ভ হৈছিলে, আমাৰ এছেম্বলি চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে? চ' চাওক, দ্য ষ্টৰি বিগিনছ ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861 কেনেকৈ ইভল্ভ হৈছিলে আমাৰ আছাম ষ্টেট এছেম্বলি, ঠিক আছে? চ' এতিয়া চাওক, সেইটো সময়ত আপোনালোকে জানে যে অসমখন আপোনালোকৰ কমিশ্যনাৰী ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত আছিলে, ঠিক আছে? চ' কমিশ্যনাৰী ছিষ্টেম যোনটো হয় আপোনালোকৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ, জুনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ এনেকুৱা থাকে, ঠিক আছে? চ' আমি সেইটো চাইছিলোৱেই 1828 পিছৰ পৰা যোনটো আপোনালোকৰ কমিশ্যনাৰী ছিষ্টেম এইটো ষ্টাৰ্ট হয়, ৰাইট? চ' আফটাৰ 1828 পৰা গৈ পেলাই আপুনি ক'ব পাৰে এইটো গৈ থাকে ইনফেক্ট। আৰু যদি চাই সেইটো সময়ত যোনজন কমিশ্যনাৰ আছিলে আমাৰ অসমৰ চিফ কমিশ্যনাৰ আছিলে, ঠিক আছে? সেইজন চিফ কমিশ্যনাৰে ছিনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ ক'ব পাৰে আপুনি, ঠিক আছে? কাৰণ চিফ কমিশ্যনাৰ প্ৰভিন্সটো পিছত আহিছিলে। চ' সেইটো সময়ত আমাৰ কমিশ্যনাৰী ছিষ্টেমেই চলি আছিলে, য'ত আপোনাৰ দুজন কমিশ্যনাৰ আছিলে, এজন ছিনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ, ঠিক আছে? আৰু এজন আছিলে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ। চ' ছিনিয়ৰ কমিশ্যনাৰজন আপোনালোকে জানে চাগে যে তেখেতে আপোনালোকৰ যোনটো লোৱাৰ আছাম হয় ডেট ইজ আপোনাৰ গুৱাহাটীত আছিলে, আৰু জুনিয়ৰ কমিশ্যনাৰজন আপাৰ আছামত ৰংপুৰত আছিলে, ঠিক আছে? নিয়াৰ শিৱসাগৰ। চ' এতিয়া যোনটো কমিশ্যনাৰী ছিষ্টেম হয় সেইটো সময়ত যদি চাই আপোনালোকে 1861 কথা, যেতিয়া ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট পাছ হয় 1861 সেইটো সময় আমাৰ অসমৰ ছিনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ কোন আছিলে? ইট ৱাজ হেনৰি হপকিনছন। আৰু এটা কথা জানি ল'ব যে 1861 আপোনালোকৰ কি হৈছিলে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছিলে, লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰ কনচেপ্টটো আহিছিলে। যোনবিলাক আপোনালোকৰ ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্সেছ আছিলে সেই প্ৰভিন্সখিনি বা ব্ৰিটিছৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ, আপুনি জানে চাগে ব্ৰিটিছৰ বেলেগ বেলেগ মানে যোনখিনি আপোনালোকৰ ব্ৰিটিছৰ আমি ৰাজ্যৰ যোনটোখিনি ব্ৰিটিছ টেৰিটৰীৰ কথা কওঁ ইণ্ডিয়াত, সেইখিনি কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকৰ? আইদাৰ ইট ৱাজ এ প্ৰভিন্স, ঠিক আছে? প্ৰভিন্স বুলি কয় মানে ষ্টেট ক'ব পাৰে, প্ৰভিন্স আছিলে। তাৰ উপৰিও ব্ৰিটিছৰ কিছুমান জেগাত কি আছিলে, কমিশ্যনাৰী ছিষ্টেম চলি আছিলে আপোনালোকৰ, য'ত আপোনাৰ এই আমাৰ যোনটো অসমত চলি আছিলে, ঠিক আছে? কমিশ্যনাৰীত আছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিছুমান জেগাত চিফ কমিশ্যনাৰীত প্ৰভিন্সো আছিলে, ঠিক আছে? চ' চিফ কমিশ্যনাৰীত প্ৰভিন্সো আছিলে আপোনালোকৰ। তাৰ উপৰিও কিছুমান প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে, ঠিক আছে? যোনবিলাকৰ লগত ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেইটো সময়ত যদি চাই কিবা না কিবা মানে চুক্তিৰ দ্বাৰা সিহঁতৰ লগত জড়িত আছিল, ঠিক আছে? প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। সেইটো সময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো গ'ল বাৰু 1858 কথা, যিহেতুকে 1861 উই আৰ টকিং এবাউট 1861 সেইটো সময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবলিছ হৈ গৈছিলে আপোনালোকে জানে। তাৰপিছত দ্য ৰিয়েল পাৱাৰ নাও ৰেষ্টেড উইথ দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, ঠিক আছে? চ' সেইটো সময়ত যেতিয়া আমি চাই 1861 আমাৰ অসমে আণ্ডাৰ হেনৰি হপকিনছন ছিনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ অসমে আমাৰ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল নাপালে, ঠিক আছে? বাকী যদি চাই আপোনালোকৰ প্ৰভিন্সেছবিলাকে যোনখিনি আছিলে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰভিন্সেছৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানে চাগে চেণ্ট্ৰেল প্ৰভিন্স থাকিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইউনাইটেড প্ৰভিন্স আছিলে উত্তৰ প্ৰদেশ, যোনটো আমি কওঁ চেণ্ট্ৰেল প্ৰভিন্স আছিলে, ঠিক আছে? বেৰাৰ যোনবিলাক হয় আপোনালোকৰ সেইবিলাক এৰিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ ওচৰে পাঁজৰে সেইবিলাক চেণ্ট্ৰেল প্ৰভিন্সত আহে। ইউনাইটেড প্ৰভিন্সত আপোনালোকৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আদি কৰি যোনবিলাক আগ্ৰা এনত সেইবিলাক সেইটো প্ৰভিন্সত আহে। তাৰপিছত আছিলে নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স আছিলে আপোনালোকৰ, ৰাইট? এনেকুৱা প্ৰভিন্সবিলাক আছিলে আপোনালোকৰ। চ' এইবিলাকে ধৰক আপোনালোকৰ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল পাইছিলে, বাট তাৰ উপৰিও যদি চাই আমাৰ অসমে নাপালে, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাওক 1861 পৰা আমি ডাইৰেক্টলি এতিয়া জাম্প কৰোঁ 1905। 1905ত আপোনালোকে জানে যে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈছিলে। তেতিয়া কি হৈছিলে, বেংগলখন দুটা পাৰ্ট কৰি দিছিলে। এটা যোনটো বেংগল আছিলে আমি ৱেষ্ট বেংগল মানে ৱেষ্ট আৰু এটা ইষ্ট বেংগল ক'ব পাৰি, ঠিক আছে? চ' ইষ্ট বেংগলখন ছেপাৰেট কৰি দিলে আৰু কিন্তু এটা ছেইম টাইম ইষ্ট বেংগল আৰু অসমক এটা কৰি দিলে, ঠিক আছে? টেগ মানে কি বোথ ৱেৰ টেগড এজ ওৱান প্ৰভিন্স। তাৰপিছত যদি চাই 18 ডিচেম্বৰ 1906ত এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল এষ্টাব্লিছ কৰিলে ফৰ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম,
মানে যেহেতুকে এটা দুটা প্ৰভিন্স এক কৰি দিলে ওকে সো পাৰ্টিশন অফ বেংগলত কি হয় ৱেষ্ট বেংগলটো সেপাৰেট হৈ গ'ল ইষ্ট বেংগলটো সেপাৰেট হৈ গ'ল ইষ্ট বেংগল মানে যোনটো আমি আজি ইষ্ট পাকিস্তান বাংলাদেশ বুলি কওঁ সেইটো সেইখন আৰু যদি চাই ইপিনে আসাম ৰাইট সো আসাম যদি চাই 1905 লৈকে আপুনি ক'ব পাৰে চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্সত আছিলে তাৰপিছত আসামক কি কৰিলে আপোনাৰ ইষ্ট বেংগল আৰু আসাম এটা ইউনিট কৰি দিলে এইটো এটা প্ৰভিন্স বনাই দিলে ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ল আপোনালোকৰ 18 ডিসেম্বৰ 1906 আপোনাক এটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল দিলে ফৰ দিস ইউনাইটেড প্ৰভিন্স ওকে দিস জইণ্ট প্ৰভিন্স আৰু ইয়াত যদি চাই আমাৰ অসমৰ যোনটো টোটেল সিটস যদি আমি চাওঁ এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলখনত মানে ইষ্ট বেংগল আৰু অসমক ধৰি পেলাই ইয়াত টোটেল সিটস কিমান আছিলে 40 সিটস আছিলে ঠিক আছে কিন্তু অসমে ইয়াৰ ভিতৰত অকল 5টা সিট পালে সো বুজি ল'ব কথাটো যে এতিয়া যেতিয়া 1905 ৰ দুইটাক টেক কৰি দিলে একেটা প্ৰভিন্স বুলি the province of Assam, East Bengal and Assam. তেতিয়া কি কৰিলে ইষ্ট বেংগলক 1909ত কি কৰিলে টোটাল 40টা সিটস দিছিলে সো ইষ্ট বেংগলে তাৰ ভিতৰত 35টা পালে আৰু অসমে অকল 5টা পালে ঠিক আছে এনেকুৱা কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকে জানে চাগে দিল্লী দৰবাৰ যেতিয়া হয় আপোনালোকৰ 1911-12 সেইটো সময়টো তেতিয়া কি হ'ল আপোনালোকৰ এনালমেন্ট হয় এনালমেন্ট মানে যোনখন আপোনাৰ 1905 ৰ যোনখন আপোনালোকৰ ধৰক পাৰ্টিশন অফ বেংগল হৈছিল তাক এনাল কৰি দিয়া হয় মানে তাক কেনসেল কৰি দিয়া হয় সো আগতে যেনেকুৱা আছিলে আকৌ প্ৰভিন্সবিলাক তেনেকুৱা হৈ গ'ল মানে ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট বেংগল এখন হৈ গ'ল আৰু অসম আকৌ সেপাৰেট হৈ গ'ল তেতিয়া অসমে আকৌ কি পালে আগৰ যোনটো আপোনালোকৰ আগৰ ষ্টেটাছ আছিলে চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিন্স সেই ষ্টেটাছটো আকৌ পাই গ'ল তাৰ পিছত 1913ত কি হ'ল চাওক তাৰ মাজতে আপোনালোকে জানে চাগে 1909 চনত 1909ত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909 আহিছিলে যাক আমি মৰ্লি মিণ্টো ৰিফৰ্ম বুলি কওঁ ৰাইট মৰ্লি মিণ্টো ৰিফৰ্ম ৰাইট আৰু এই মৰ্লি মিণ্টো ৰিফৰ্মত গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909ত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ অসমে এটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নিজৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছিলে সো চাওক আমি এতিয়ালৈকে লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইভলিউশনৰ কথা পাতি আছো কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে লেজিসলেটিভ এছেম্বলি পোৱা নাই কিন্তু ওকে সো ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি চাই 1913 চনত ইন 1913 we had got the legislative council under the government of India Act 1909 now this legislative council came into being with strength of 34 members so initially যদি চাই আপোনালোকে this legislative council যোনখন অসমত আপোনালোকৰ হৈছিল it had 34 members তাৰ ভিতৰত যদি চাই 13 জন মেম্বাৰ আপোনালোকৰ চিফ কমিশনাৰ যোনজন থাকিব তেখেতে নমিনেট কৰে যেনেকৈ গভৰ্ণৰে নমিনেট কৰে সো তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে this 13 members were nominated and the rest 21 people were elected by the 21 members were elected by the people ঠিক আছে so 34 জন members asle apnar legislative council khonor tare jodi sai 13 jon nominate kora hoisile nominated by whom by the chief commissioner nominate korisile so apuni kobar governor nisnai tikhetor power asile hitu khomayot chief commissioner aru apnalokor baki jun keta post asile that is 21 eketa seats ki hoisile these were elected by people okay elected by people so teneke amar prothombar babe amar legislative council khon mane start hoisile 1913 sonot tar bisot sauk prothom jodi sitting or kotha ko ei date to bahut important hoy first sitting hoisile apnar 6 January date to mon rakhibo 1913 or 6 January 11টা বজাত ৰাতিপুৱা ঠিক আছে শিলং কিয় বিকজ শিলং was our capital at that time so hetu সময়ত legislative council of Assam tar first meeting hon hoisile and that was presided over by Sir Agdel Earl so Agdel Earl কোন আছিল hetu সময়ত অসমৰ chief commissioner আছিল okay আজি দিনত যদি চাই টিকেটৰ ইকুইভ্যালেন্ট পাৱাৰে আছিল হেতু সময়ত গভৰ্ণৰ যোনটো পোষ্ট হয় আমাৰ সেম হেতু সময়ত চিফ কমিশনাৰ হেতু পাৱাৰ আছিল ঠিক আছে সো আগডেল আৰ্লে প্ৰিসাইড কৰিছিল হে মিটিংখনত ওকে সো ডেটটো মনত ৰাখিব 6 জানুৱাৰী 1913 চনত আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল তাৰপিছত যদি চাই আমাৰ যোনটো এটি চাইছিলো আমি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত সাউথ টোটাল 34টা সিটৰ কাৰণে আমাৰ আছিল হয়নে সো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 ত যাক আমি কি কওঁ মন্টেক চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম বুলিও কওঁ ৰাইট সো এই 1919 চনৰ যোনখন গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট হয় তাত কি হ'ল এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যে আছিল আগতে আমাৰ সিটস কেইটা আছিল 34টা আছিল ৰাইট এতিয়া এটো বঢ়াই পেলাই কিমান কৰিলে 53টা কৰিলে মানে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 ত সব এতিয়ালৈকে লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আহা নাই জাস্ট কি কৰিছে আপোনাৰ যোনখন লেজিসলেটিভ মানে এছেম্বলি কাউন্সিল আমাৰ চলি আছে যত আপোনাৰ 34 জন মেম্বাৰছ আছিল ঠিক আছে সো সিটস কেটা বঢ়াইছে 34 পা কেটা কৰিলে এতিয়া 53টা কৰিলে আৰু যদি চাই this members
সিহঁতে যদি চাই ইহঁতে মানে এই বস্তুটো গোটেই প্ৰচেছটো যদি চাই তাত আপুনি ক'ব পাৰে যে এই 53 মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত 41 জন কি হ'ল এবাৰ ইলেক্টেড হ'ল আৰু বাকী 12 জন নমিনেট কৰিব ঠিক আছে এতিয়া চাওক 1921লৈ আহোঁতে কি হ'ল আপোনালোকৰ জানে চাগে যে আপোনাৰ চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্সৰ পৰা অসমক কি কৰিলে অসমক গভৰ্ণৰশ্বিপ দিলে মানে এতিয়া আপোনালোকৰ চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্স বুলি কৈছিলোঁ আমি ৰাইট আগতে 1921লৈকে আপুনি ক'ব পাৰে 1920লৈকে ক'ব পাৰে চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্স আছিলে চ' 1921ত কি হ'ল অসমত গভৰ্ণৰশ্বিপ চিষ্টেম আহিলে মানে গভৰ্ণৰ্ছ প্ৰভিন্স বনাই দিলে ঠিক আছে আগতে চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্স আছিলে এতিয়া গভৰ্ণৰ থাকিব ইয়াত অ'কে হেড চ' এই গভৰ্ণৰ এতিয়া এই আপুনি যে দেখিছে ইলেক্টেড হয় 41 জন আৰু 12 জন যে নমিনেটেড হয় এই নমিনেটেড কোনে কৰে গভৰ্ণৰে নমিনেট কৰে ঠিক আছে অ'কে চ' ইমানখিনি বুজিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909 আমাক লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটো দিলে তাত 34 জন মেম্বাৰ্ছ আছিলে ইনিচিয়েলি আৰু আহোঁতে 1919ৰ এক্টখনত কি কৰিলে জাষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বঢ়াবলৈ কাৰণে 53 জন মেম্বাৰলৈকে বঢ়াই দিলে আৰু ইলেক্টেড মেম্বাৰ যদি চাই এতিয়া 41 জন হ'ল আগতে যদি ইলেক্টেড মেম্বাৰ চাই কিমান আছিলে দে ৱেৰ 21 ৰাইট চ' 21ৰ পৰা কি হ'ল এতিয়া ইয়াত বাঢ়ি আমাৰ ইউ কেন চে 41 জন হ'ল 21ৰ পৰা 41 জন হ'ল ঠিক আছে 20 জন বঢ়াই দিলে ধৰক এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ আমি আহোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935লৈ सो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या होता है यहाँ पे देखिए इट वॉज एडप्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 2 अगस्त 1935 सो 2 अगस्त 1935 में ये एक्ट पास होता है ठीक है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इसलिए आप देखेंगे कि ये एक्ट पास हुआ है 1935 में लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है मतलब इलेक्शंस कंडक्ट करना या कुछ भी हो इसके जो प्रोविजंस थे वो शुरू हुआ था फ्रॉम 1937 ठीक है तो देखिए यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेड प्रोविजंस फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली इन ईच प्रोविंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लैंडमार्क एक्ट भी है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ठीक है क्योंकि आप अगर देखेंगे बहुत सारे मतलब आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है राइट सो ये एक्ट इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था जितने भी प्रोविंस थे सब प्रोविंसेस में अभी क्या होगा दे विल गेट ए लेजिस्लेटिव असेंबली और ऐसा ही क्या हुआ असम में भी लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया लेकिन देखिए पहले से ही तो असम में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चल रहा था जिसमें 53 मेंबर्स थे ठीक है सो इसको लेके पैरेलली आप बोल सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों आ गए इसलिए असम में 1937 में कैसा था इट वॉज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्योंकि इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो आपके अपर हाउस है और जो आपके नया जो लेजिस्लेटिव असेंबली आया जो लोअर हाउस होगा दोनों ही पैरेलली फंक्शन करने लगे दैट इज व्हाई यू कैन से इट्स ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर आने लगा मतलब आ गया था असम में ठीक है सो पहली जो मीटिंग है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली का वो 7 अप्रैल 1937 में पहली बार हुआ था और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है राइट जैसे हमारे लोकसभा में आप देखेंगे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखेंगे सारे मेंबर्स क्या होते हैं ऑल आर इलेक्टेड मेंबर्स उसमें नॉमिनेशन का कुछ प्रोविजन नहीं था ठीक है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या आप राज्यसभा में आज भी देखेंगे तो क्या होता है उसमें नॉमिनेशन होता है राइट बट इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल द मेंबर्स वर इलेक्टेड सो 7 अप्रैल 1937 में जब फर्स्ट सिटिंग शिलोंग में हुआ तब क्या हुआ था 108 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स सेट देयर ठीक है मतलब 1937 में पहली बार असम में इलेक्शन हुआ था प्रॉपर इलेक्शन हुआ था जिसमें सारे मेंबर्स जो थे उस पर्टिकुलर असेंबली के सारे क्या हुए थे उनके लिए इलेक्शंस हुआ था ठीक है बट उसमें भी आपको पता होगा शायद इतना हर एक को मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं था उसमें भी बहुत सारे चीज़ें थे बट एनी हाउ लोगों का मतलब जो वोटिंग राइट्स है वो लोग एक्सरसाइज करने लगे थे प्रॉपरली असम में ठीक है अभी देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उस टाइम पे वाज नॉट लेस देन 21 एंड नॉट मोर देन 22 मेंबर्स ठीक है मतलब 20 नहीं हो सकता या 23 नहीं हो सकता मतलब इट कैन बी आइदर 21 और 22 तो समझ में आ गया होगा आपको क्या हुआ जो आपका 53 सीट्स था ना पहले कितना था पहले वी हैव सीन दैट वी हैड 34 सीट्स राइट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपर हाउस में 34 से जाके ये बढ़ गया 53 तक लेकिन जब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया तब लेजिस्लेटिव जो आपकी काउंसिल थे उसका जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ या सीट बोल सकते हो आप वो घट गया ठीक है मतलब आपका 20 से मतलब 21 से कम नहीं हो सकता और 22 से ज़्यादा नहीं हो सकता मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 53 टू यू कैन से
21 और 22, ठीक है। सो 21 या 22 के बीच ही, मतलब 21 या 22 ही हो सकता है। सो पहले था 34, राइट, बढ़ गया 53, फिर आ गया अभी 21 या 22 में। सो धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक साइड जब लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर्स बढ़ रहा था, राइट। सो जैसे डायरेक्ट आते ही 108 हो गया, आपको पता है अभी कितना हुआ है, 126 है, 126 है, ठीक है। सो लेकिन स्टार्टिंग में अगर देखेंगे 108 था ना, सो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ काउंसिल्स मतलब सीट्स यहाँ पे घटा दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए हम लोग 1937 की बात कर रहे हैं। आफ्टर 10 इयर्स, दैट इज इन 1947, क्या हुआ, पार्टीशन हो गया इंडिया का, राइट। इंडियन इंडिपेंडेंस तो मिला, लेकिन विद द इवेंट ऑफ पार्टीशन, उस टाइम पे सिलेट जो था, सिलेट डिस्ट्रिक्ट, वो असम का था। एंड दिस सिलेट डिस्ट्रिक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज आज जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ पे ट्रांसफर हो गया था सिलेट डिस्ट्रिक्ट। तो जो नंबर्स थे 108, वो क्या हो गया, पहले घट के 71 हो गया, ठीक है। फिर 126 जाके बाद में बढ़ा, दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप याद रखिए जो इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो आपको मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का जो प्रोविजन दिया, उससे आप देखेंगे तो इलेक्शंस हुआ था 1937 में। उसके बाद आपका 1 अप्रैल 1937 में फर्स्ट सिटिंग हुआ था, उसमें 108 मेंबर्स के लिए था, ठीक है। फिर जब सिलेट डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हो गया आसाम से, तो उसमें से बहुत सारे सीट्स चले गए, इसलिए ये घट के 71 हुआ, ठीक है। बाद में ये जाके फिर से आज अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे 126 हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी। अभी देखिए हम अब यहाँ तक क्या हमने डिस्कस किया, 1947 तक। आगे बढ़ते हैं, देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स वर अगेन रेज्ड टू 108। द बाइकैमरल असम लेजिस्लेटिव असेंबली बिकेम यूनिलेटरल। यूनिलेटरल क्यों हो गया, बिकॉज जो आपका असम लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको एबॉलिश कर दिया गया था इन 1947, ठीक है। सो जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही था असम में, तो 1947 में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया, तो इसलिए एक सिंगल हाउस बचा, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिकैमरलिज्म या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जो आज तक चलते आ रहा है, ठीक है। फिर कुछ इंसिडेंट्स देखते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है घटना, इवेंट्स। सो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड केम इनटू बीइंग एज ए सेपरेट स्टेट, ठीक है। आज भी अगर आप ट्रिब्यून पढ़ेंगे, असम ट्रिब्यून, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि नागालैंड का जो अभी उनका जो 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से नाउ सिंस दे हैव कम इनटू टॉक्स विद द स्टेट गवर्नमेंट, सो नागा इंसर्जेंसी तो घट गया है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मतलब पीस अंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रहा है, लेकिन द थिंग इज दैट नागा के जो लीडर्स है, नागालैंड के लीडर्स है, दे आर अगेन डिमांडिंग फॉर ए सेपरेट फ्लैग एज वेल एज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये आज न्यूज़ में आया था, सो नागालैंड का, इसलिए मैंने रिलेटेड है बता दिया आपको। तो याद रखिए 1 दिसंबर 1963 में, क्योंकि सारे पहले स्टेट्स जो थे एक साथ हम लोग थे, ठीक है, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हम लोग एक ही स्टेट के अंदर थे, असम में, ठीक है। सो नागालैंड जो है, नागालैंड बिकेम ए सेपरेट स्टेट, क्योंकि उस टाइम पे अगर देखोगे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद नागा इंसर्जेंसी फिर से राइज हुआ था, ठीक है। सो इसलिए क्या हुआ, जो स्टेटहुड का डिमांड था इट वाज फुलफिल्ड, एंड अकॉर्डिंगली 1 दिसंबर 1963 को एक सेपरेट स्टेट बना हमारा। सो इंडिया का 16th स्टेट बना नागालैंड, ठीक है। फिर 1971 में क्या हुआ, जिसको नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एरियाज एक्ट बोलते हैं, वो इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1972 आपको पता होगा मेघालय गॉट सेपरेटेड, तो हमारा जो कैपिटल था वो क्या था, पहले इट वाज इन शिलोंग। सो 1972 में क्या हुआ, हमने शिलोंग से शिफ्ट किया अपना कैपिटल टू दिसपुर, ठीक है। असम का कैपिटल शिलोंग से आ गया दिसपुर में, क्यों, बिकॉज 1971 में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पास हुआ था, ठीक है, इसलिए मेघालय गॉट स्टेटहुड। सो देखिए यहाँ पे दो स्टेट्स अगर देखेंगे 1972 में दो स्टेट्स को स्टेटहुड मिला था। देखिए पहला स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट से आई मीन असम के बाद जिसको स्टेटहुड मिला, मतलब असम से सेपरेट हो गया, इट वाज नागालैंड, ओके, 1963 में। उसके बाद अगर देखेंगे 1972 में और दो स्टेट्स बने थे अंडर द नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। सो ये स्टेट्स थे आपके पहले आप जिसको हम नेफा बोलते थे, राइट, जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी एजेंसी बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। सो इसको रीनेम किया गया 1972 में एज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो और अरुणाचल प्रदेश को इमीडिएटली आपका स्टेटहुड नहीं मिला था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकेम यूनियन टेरिटरी, ठीक है।
सो पहला अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो असम से सेपरेट हुआ, इट वाज नागालैंड। उसके बाद सेकंड जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सेकंड और थर्ड, वो है एक्चुअली 3 स्टेट्स थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इन तीनों को स्टेटहुड मिला था, ठीक है। लेकिन याद रखिए, अरुणाचल को इमीडिएटली स्टेटहुड नहीं मिला था, सेपरेट हो गया था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी उसका पहला नाम था। इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम असम बट इट बिकेम यूनियन टेरिटरी फर्स्ट, ठीक है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट 1972 में मैंने बोला गवर्नमेंट ऑफ असम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर। फिर क्या हुआ, 16 मार्च 1973 में फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बजट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो था वाज हेल्ड एट ए टेम्पररी कैपिटल एट दिसपुर, ठीक है। और इसी बीच मैंने बोला था, इसको भी याद रखिए, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, इन तीनों को एक साथ स्टेटहुड मिला था इन 1972। ये लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी, ठीक है। फिर देखिए 20 फरवरी आते आते क्या हुआ, इन 20 फरवरी 1987 मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश जो पहले एक यूनियन टेरिटरी था, सो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या मिला, स्टेटहुड मिला 87 में, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द फ्लो, कैसे स्टेट्स यहाँ पे बने थे। नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, असम का कैपिटल कब शिफ्ट हुआ था, कैसे शिफ्ट हुआ था, ठीक है। वी हैव सीन दिस। नाउ सी द स्टेटहुड डेज। सो अभी 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड मिला था। ये पहला स्टेट बना जो असम से सेपरेट हुआ था, ठीक है। इसलिए आप देखोगे न्यूज़ में अभी फिर से नागालैंड का जो कुछ डिमांड्स है, ठीक है, स्पेशली एनएससीएन जो एक फैक्शन है, एनएससीएन का इसक मुइवा, जो ये पर्टिकुलर फैक्शन है, दे हैव बीन डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अ सेपरेट स्टेट फ्लैग, ठीक है। एक सेपरेट फ्लैग उनको चाहिए। सो ये डिमांड चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही निगोसिएशन चल रहा है। सो एनीवेज ये उनके स्टेटहुड डे क्लोज है, इसलिए फिर से ये डिमांड आने लगा है। अभी देखिए 1963 में अगर देखेंगे, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड मिला था। और ये कैसे मिला था, अंडर द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962, ठीक है। एक एक्ट पास हुआ था। सो ऐसे तो हम मतलब बोल के तो नहीं सेपरेट कर सकते ना, तो क्या होना पड़ेगा, एक लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा। सो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 वाज पास्ड एंड उसी के बाद ही 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड मिल गया। फिर जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1971, उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 21 जनवरी 1972 को 3 स्टेट्स को स्टेटहुड मिला था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इनको डायरेक्ट स्टेटहुड मिला, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं थे। और एक चीज़ याद रखिए, जो 20 जनवरी है, ठीक है, 1972 में ही, मतलब इन स्टेट्स को, ये मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को स्टेटहुड मिलने से पहले, उससे पहले वाला दिन, ठीक है, दैट इज 20 जनवरी 1972 में क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश जिसको हम नेफा बोलते थे, नेफा का नाम बन गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था, असम से सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। फिर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड मिल गया और मिजोरम को भी स्टेटहुड मिल गया, ठीक है, अंडर द अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 एंड द स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986, ठीक है। सो बहुत इजी है याद करने के लिए। नागालैंड गॉट सेपरेटेड फर्स्ट स्टेट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सारे स्टेट्स बन गए। अभी कितना हो गया, 6 स्टेट और असम को मिला के और सिक्किम को मिला के हम एक मतलब 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं प्लस सिक्किम, राइट, दैट इज अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। अष्टलक्ष्मी मतलब सिक्किम को भी इंक्लूड करके 8 लक्ष्मी, जो हमारे पीएम सर बोलते हैं अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट को, राइट। सो ऐसे हमारा अष्टलक्ष्मी अभी यहाँ पे है, ठीक है। ओके, लेट्स नाउ कम टू द स्ट्रेंथ। सो याद करने के लिए मैंने ऐसे एक माइंड मैप बना दिया आपको। 1913 में हमारा जो असम लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनिशियली 34 मेंबर्स था, उसमें से 21 इलेक्टेड है, 13 नॉमिनेटेड है। 1919 में ये नंबर्स बढ़ के कितना हो गया, 53 हो गया। उसमें से अभी ये डबल हो गया, अब ऐसे याद कर सकते हो, 21 था ये 41 हो गया इलेक्टेड, 13 था ये 12 हो गया नॉमिनेटेड, ठीक है। 1937 में आते आते क्या हो गया, जो आपका नंबर्स था लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो घट गया, इट हैज़ टू बी बिटवीन 21 एंड 22, ठीक है। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो स्टार्ट हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और 1937 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था 108 सीट्स या 108 मेंबर्स का मतलब इलेक्शन हुआ था, जिसमें सारे मेंबर्स इलेक्टेड थे, राइट। 1947 में आते आते क्या हो गया, सिलेट डिस्ट्रिक्ट फिर सेपरेट हो गया था, जो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था।
सो उसमें क्या हुआ, हमारा जो नंबर था वो 108 से आके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना 71 बन गया। 1952 से 57 अगर देखेंगे जहाँ पे फर्स्ट असेंबली आया था, राइट, क्योंकि 1951 में हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद क्या हुआ, आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में, मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन होता है 1951 में हुआ था, राइट। और फर्स्ट असेंबली जो हमारा असम में बैठा था फर्स्ट 5 साल के लिए, वो बैठा था बिटवीन 1950 टू 57। उस टाइम पे आप देखेंगे जो नंबर्स पहले थे उतने ही थे, 108। फिर क्या हुआ, 1957 और 62 के बीच जो सीट्स थे वो घट के 105 हो गया। फिर 67 से 71 के बीच ये बढ़ गया, फिर 114 हो गया। और जब फिफ्थ असेंबली आते आते 1972 और 78 के बीच जो फिफ्थ स्टेट असेंबली था, उस टाइम पे आते आते उस टर्म पे आते आते कितने हो गए मेंबर्स, 126 हो गए, ठीक है, जो अब तक मतलब कायम है, यही चल रहा है नंबर, ठीक है। अभी देखिए, although Article 172 provides the duration of the state legislative assembly is 5 years due to imposition of national emergency in 1975, the fifth Assam legislative assembly lasted for 6 years, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आपको पता है कि आर्टिकल 172 के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 के अंदर क्या होगा, हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है वो 5 साल होता है, राइट। बट आपको पता होगा 1975 में इसी बीच में फिफ्थ असेंबली सब चल रहा था असम में, तब नेशनल इमरजेंसी आया था 1975 में, राइट। सो इट ऑल्सो इम्पैक्टेड असम। सो जो असम का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था वो 1 साल के लिए बढ़ गया था, इसलिए आप देखोगे, इसलिए ये 77 में खत्म होना था लेकिन 78 में खत्म हुआ है, ठीक है। ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, हमारे असम लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पहले स्पीकर थे उनका नाम याद रखिए, इट वॉज लेट बाबू बसंत कुमार दास, ठीक है। सो लेट बाबू बसंत कुमार दास, या कहीं कहीं बसंत कुमार दास या बाबू बसंत कुमार दास भी लिखा होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सिंस 1937। सो अगर देखेंगे असम प्रोविंस उस टाइम पे था, प्री इंडिपेंडेंस में हम उसको क्या बोलते थे, असम प्रोविंस बोलते थे, राइट। सो उस टाइम पे आपको पता है उस टाइम पे हम लोग जो टर्म यूज करते थे फॉर द हेड ऑफ द स्टेट, इट वाज द गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड, अगर देखेंगे मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होते थे इट वाज, हम उनको डेजिग्नेट करते थे एज प्राइम मिनिस्टर, राइट। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में असम जब स्टेट बना, ठीक है, इट वाज नॉट अ प्रोविंस एनीमोर, उस टाइम पे क्या हुआ, ये डेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर से चेंज होके चीफ मिनिस्टर बन गया। सो चीफ मिनिस्टर वाले पार्ट में जो आगे वाला वीडियो है वो उसमें हमने डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें एक्सटेंसिवली, आप देख लीजिए वहाँ पे। एनीवेज, सो असम प्रोविंस के जो प्री इंडिपेंडेंस में पहली जो, अब देखिए ये चीज़ याद रखिए, स्पीकर्स अगर हम बोलेंगे, बिकॉज दिस असम लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्टेड इन 1937। सो 1937 में अगर आप देखेंगे, आप फर्स्ट जो आपके स्पीकर थे असम लेजिस्लेटिव असेंबली के उस टाइम पे कौन थे, बाबू बसंत कुमार दास, ठीक है। फिर उनके बीच अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब और दो स्पीकर्स आए थे, जो देवेश्वर शर्मा थे और एक लखेश्वर बरुआ, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखेंगे, ठीक है, ये भी याद रखिए, बाबू बसंत कुमार दास वाज द फर्स्ट स्पीकर प्री इंडिपेंडेंस। अगर प्री इंडिपेंडेंस पूछ दिया देन यू हैव टू मेंशन इट एज बाबू बसंत कुमार दास। बट अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया दैट मीन्स आपका जब फर्स्ट असेंबली बैठा था बिटवीन 1952 से लेके 57 के बीच, राइट, फर्स्ट 5 इयर्स में। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे पहला स्पीकर कौन थे, उनका नाम था कुलधर सोलिहा, तो याद रखिए नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन थे, देवकांत बरुआ थे स्पीकर। थर्ड थे महेंद्र मोहन चौधरी। फोर्थ थे हरेश्वर गोस्वामी। फिफ्थ थे महिकांत दास। सिक्स थे रमेश चंद्र बरुआ। सेवन थे जोगेंद्रनाथ हाजरिका। एट कौन थे, शेख चांद मोहम्मद। नाइन्थ थे पुलकेश बरुआ। टेन थे जीवकांत गगৈ। 11 थे देवेश चंद्र चक्रवर्ती। 12 थे गणेश कुटुम। 13 थे पृथ्वी माझी। 14 थे टंक बहादुर राय। 15 थे प्रणब कुमार गगৈ। 16 थे रंजीत कुमार दास। 17 हितेंद्रनाथ गोस्वामी। और अभी एट प्रेजेंट 18th जो स्पीकर है हमारे, ठीक है, राइट फ्रॉम 21 मई 2021 से लेके अब तक प्रेजेंट इनकम्बेंट जो है इट इज विश्वजीत दोईमरी, ठीक है, वो 18th स्पीकर है, याद रखिए। अभी हम देखते हैं द असम स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर सैलरी अलाउंसेस एंड एमिनिटीज एक्ट 2018, क्योंकि सैलरी अलाउंसेस रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डायरेक्टली कहीं पे आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है, तो उनमें जस्ट आर्टिकल्स में प्रोविजंस मतलब मेंशन हुआ होता है, लेकिन वो आर्टिकल्स का हेल्प लेके हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक सम एक्ट्स, कुछ लेजिस्लेशंस बनाना पड़ता है, ठीक है। सो
लेजिस्लेशन ऐसा नहीं है 2018 में पहली बार बना है, उससे पहले सैलरी नहीं मिलता था, राइट? ऐसा तो नहीं है। सो कब हुआ था? असम स्पीकर सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट 1958 था। दोनों सेपरेट एक्ट, जैसे हमने सीएम वाले पार्ट में पढ़ा था, सीएम का जो सैलरीज एंड अलाउंस एक्ट था, फिर दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी मेंबर्स के थे, वो दोनों सेपरेट सेपरेट था। तो क्या हुआ, दोनों को मिला के एक बना दिया। मतलब 2018 में क्या किया, जो ये असम स्पीकर सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट था 1958 और असम डिप्टी स्पीकर सैलरीज एंड अलाउंस एक्ट 1950, दोनों को मर्ज करके एक एक्ट बनाया जिसका नाम था, इन दोनों को मतलब रिमूव करके, रिपेल करके एक नया एक्ट बनाया जिसका नाम था द असम स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स सैलरीज अलाउंसेस एंड एमिनिटीज एक्ट 2018, जिसके हिसाब से अगर देखोगे, और ये फोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018 में फोर्स हुआ था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर का सैलरी कितना है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑफ 2018? वो है 1.20 लाख रुपीज। और डिप्टी स्पीकर का कितना होता है पर मंथ? इट्स 1 लाख रुपीज। ठीक है। अलाउंसेस की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री असिस्टेंट अलाउंस कितना होता है? 10,000 होता है पर मंथ। समट्री अलाउंस जो होता है वो 20,000 होता है। डेली अलाउंस जो होता है, अगर हमारे स्पीकर सर अगर स्टेट के अंदर घूम रहे, ठीक है, किसी ऑफिशियल विजिट से गए हैं, सो उसमें डेली अलाउंस मिलता है 1850। और अगर कुछ काम के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है उनको, तो उनका जो डेली अलाउंस होगा वो 2500 रुपये होगा पर डे, 2500। ओके। सिटिंग अलाउंस जो होता है फॉर पर सिटिंग, उसमें 1850 रुपीज़ मिलता है उनको। ठीक है। सो जैसे हमने सीएम सर के टाइम पे डिस्कस किया था, सेम अलाउंसेस सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही है, आप देखोगे। नाउ लिस्ट ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस्ड। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, कुछ नए नए जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए, कुछ पास हुआ है, कुछ पास नहीं हुआ है, और कुछ पेंडिंग है, कुछ रिपेल हुआ है। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले बिल्स हैं मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लिस्ट ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस इन 2024 अगर देखेंगे, और लेटेस्ट वाले हैं सारे, ठीक है, अप टू डेट। सो पहला जो आपका बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वो था असम राइट टू पब्लिक सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको हम आरटीपीएस एक्ट बोलते हैं। आरटीपीएस या एआरटीपीएस एक्ट 2012 था, उसको अमेंड किया गया था। असम राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट एआरटीपीएस एक्ट 2012, इसको अमेंड किया गया था, और इसलिए 2024 में इस साल ही एक अमेंडमेंट बिल लाया। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट वाला मैंने रेड कर दिया है, बाकी सारे आप देख सकते हो या यू कैन जस्ट लीव इट। फिर आता असम मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट, जो आपके वन टाइम टैक्सेशन होते थे, वन टाइम टैक्स बोलते हैं ओटीटी, उसको रिवाइज किया गया था फॉर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। सो ये एक्ट बिल इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर द असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्सेस बिल, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे द असम अर्बन वाटर बॉडीज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन बिल 2024, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर द असम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल 2024, ये भी इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता, मणिपुरी, आपको पता है मणिपुरी लैंग्वेज जो है ये बराक वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, और एक हमारे यहाँ पे आप बोल सकते हो, जो हमारे यहाँ पे नौगांव के, आई मीन नौगांव, नौगांव नहीं एग्जैक्टली, जिसको हम, अच्छा मैं पहले बराक का तीनों दिखा देता हूँ। जैसे बराक वैली में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो बराक वैली में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? बराक वैली में है हाइलाकांडी, करीमगंज एंड कचार। ठीक है। सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और जो आपका जमुना कॉन्स्टिट्यूंसी है, आई मीन साउथ नौगांव वाला जो एरिया है, ठीक है, उस सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और यू कैन से जो आपके साउथ नौगांव वाले पार्ट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। सो मणिपुरी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया एज एन एसोसिएट लैंग्वेज? रीज़न ये था बिकॉज उस टाइम पे मतलब इस पर्टिकुलर एरियाज में अगर देखेंगे, मणिपुरी बोलने वाले लोग बहुत हैं, राइट? सो एज पर डेट एज ए एसोसिएट लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे तो यहाँ पे आसाम स्टेट कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट, ये पास हो गया है 2023 में, इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट को, बिल को। फिर ये सफाई कर्मचारी वाला एक्ट अभी पास हो गया है, ठीक है, इस साल। बाकी सारे सारे मतलब यहाँ पे हैं, जिससे आप बोल सकते हो यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस किया लेकिन पास नहीं हुआ। हो सकता है इस बार विंटर सेशन जब बैठेंगे तब हो सकता है असेंबली में पास हो जाए। ठीक है, जो रेड वाले हैं यहाँ पे। फिर देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट एक्ट है असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस बिल 2024, ये भी पास हो गया है इस साल, इम्पोर्टेंट है। विच हंटिंग से, या आप बोल सकते हो जो जाटू टोना वगैरह है उससे रिलेटेड है एक्चुअली।
ठीक है। कुछ लोग जैसे आपका विच हंटिंग के लिए अभी भी ऐसा डायरेक्ट बिल नहीं आया, बट जादू टोना इविल इविल प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं कर सकते, राइट। जैसे आप देखोगे कि कुछ लोग कुछ बीमारी क्योर करने के लिए कुछ मेडिसिन बनाते हैं, कुछ लोग तो फ्रॉड, उसमें ज़्यादातर लोग फ्रॉड ही होते हैं, राइट। सो जो हम लोग गाँवलिया मेडिसिन वगैरह बोलते हैं या कुछ भी हो, कुछ बाबा वगैरह रहता है, सो दे मेक सम मेडिसिन। सो ये सारी चीज़ों को इविल प्रैक्टिसेस बोला गया है, ठीक है। सो ये पास किया गया। फिर असम विलेज डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2024 ये इंट्रोड्यूस किया गया है। असम म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया गया। शहीद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी, आपको पता ही होगा, फेमस गहपुर में एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर शहीद कनकलता बरुआ, और उनके नाम से ही ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये जो उनका यूनिवर्सिटी बनाने का जो बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इस साल, और इस साल ही वो इमीडिएटली पास हो गया, ओके। फिर कोकराझार यूनिवर्सिटी बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पास हो गया। फिर अगर देखेंगे आप द असम स्कूल एजुकेशन बोर्ड बिल 2024, ये भी पास हो गया। फिर असम पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट बिल, जो अभी एक्ट बन चुका है, ये भी पास हो गया है, ठीक है। फिर असम टूरिज्म डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन बिल 2024, ये भी पास हो गया है। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू असेंबली, इसलिए मैं लेके आया हूँ इनको। इस बिल सारे जो है इंट्रोड्यूस किया, कौन सा पास हो गया, मैं यहाँ पे इसलिए अपडेटेड लेके आया हूँ, क्योंकि हम लोग असेंबली पढ़ रहे हैं, स्टेट असेंबली। अच्छा, अब ये कुछ कमिटीज़ के बारे में देखते हैं। एज ऑफ असम असम लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर देखेंगे एट प्रेजेंट, जो जो अब जैसे हमने पार्लियामेंट के केस में पढ़ा था ना, वहाँ पे अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज़ होते हैं, कुछ एडहॉक कमिटीज़ होते हैं, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होते हैं, ठीक है, कमिटीज़ ऑन एथिक्स होते हैं। फिर असम में भी, यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली भी कुछ कमिटीज़ है। जैसे एट प्रेजेंट टोटल 25 कमिटीज़ है इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। हो सकता है ये नंबर चेंज हो गया हो थोड़ा बहुत, 23 या 24 होगा, ठीक है, या 26 भी हो गया होगा, बिकॉज नई कमिटीज़ मतलब चेंज होते हैं, कुछ पर्पज होने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। सो जस्ट एन अप्रोक्सीमेट नंबर एज पर आई मीन असम लेजिस्लेटिव असेंबली की जो वेबसाइट है उनके हिसाब से एट प्रेजेंट 25 है, ठीक है। सो देखिए कौन से कमिटीज़ है। कमिटी है ऑन लोकल फंड अकाउंट्स, कमिटी है ऑन एथिक्स, कमिटी है बजट के रिलेटेड बजट कमिटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है कुछ, ठीक है। कुछ हो सकते हैं ऑन द वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, राइट। फिर आप देखेंगे कमिटी है ऑन वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन। फिर एक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज़ है, लाइब्रेरी कमिटी होता है, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस होता है, कमिटी ऑन पिटिशंस होते हैं, हाउस कमिटीज़ होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिव्यू कमिटीज़ होते हैं, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस भी होते हैं, ठीक है। सो ये रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे रूल्स है आपका एज पर द, जैसे हम आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में भी कुछ रूल्स होते हैं, पार्लियामेंट्री रूल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो वो पार्लियामेंट्री रूल्स जैसे होते हैं, असम स्टेट असेंबली में भी, हमारे यहाँ पे भी कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के खुद के रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल बुक होता है, उनके रूल के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इट्स नॉट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स जस्ट अ रूल, ठीक है। जैसे आपको पता पता होगा कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ कमिटी, रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ कमिटी एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। रूल्स ऑफ कमिटी एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऐसा कुछ रूल्स होता है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, ठीक है, ऑफ LS/RS। वैसे ही हमारे स्टेट असेंबलीज में भी रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड कमिटी एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे भी हमारे भी यहाँ पे हाउस के कुछ अपने रूल्स होते हैं। सो वो रूल्स के हिसाब से ये दिया गया है, मतलब मैंडेटेड है कि इतने 260T के क्लॉज 1 में आपको लोकल फंड अकाउंट के कमिटी बनाने हैं, ठीक है। सो ऐसे मतलब दिया हुआ है, तो डिटेल्स में है बहुत ज़्यादा, आपको याद ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द नंबर्स। सो 25 कमिटीज़ है एट प्रेजेंट। और कुछ कमिटीज़ देखिए, जैसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड एक कमिटीज़ है, जनरल पर्पस कमिटीज़ है, रूल्स कमिटी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़ है, कमिटीज़ ऑन मेंबर एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ है, कुछ कमिटीज़ होते हैं वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड ट्राइब्स एंड मोर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर अदर, मतलब OBC एंड MOBC जो बोलते हैं हम लोग। फिर वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs के लिए रूल्स कमिटीज़ हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए कमिटीज़ है, एस्टिमेट्स के लिए है, पब्लिक अकाउंट्स के लिए है, ठीक है। सो देखिए, द असम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज लेड डाउन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। मतलब ये देखिए, रूल्स ऑफ कमिटी नहीं है, रूल्स ऑफ, मैं नाम थोड़ा गलत लिखा था यहाँ पे, देख लीजिए, रूल्स ऑफ
यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सो क्या है रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस इसका मतलब क्या है, जो लोकसभा में रूल्स ऑफ कंडक्ट प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है इन लोकसभा, इसको ही हमारे असम लेजिस्लेटिव असेंबली फॉलो करते हैं, खुद का नहीं होता है। मतलब ये लोग जैसे अब तक उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस अपना नहीं बनाया असम स्टेट असेंबली का, ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था। एक्चुअली क्या है, जो लेजिस्लेटिव लोकसभा में जो फॉलो होते हैं ना, वो सेम चीज़ें ही ये हमारे स्टेट असेंबली उसको फॉलो करते हैं। सो अगर आप रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा देखेंगे, उसका रूल 260T के अंदर देखेंगे, सब क्लॉज 1 में आपको मतलब लोकल फंड अकाउंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, हमारे असम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी अपना खुद का मतलब ऐसे स्टैंडिंग कमिटीज या एडहॉक कमिटीज बनाए हैं, ठीक है। ओके, सो इतना ही था, ये सारे मतलब हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में था। सो वी हैड सीन पार्ट 6 ऑफ द स्टेट्स, जिसमें हमने स्टेट असेंबली का इवोल्यूशन कैसे हुआ था वो डिस्कस किया था। देन वी हैड सीन अबाउट द स्टेटहुड डेज ऑफ सम पर्टिकुलर स्टेट्स। फिर स्ट्रेंथ के बारे में हमने देखा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर कैसे एबॉलिश हुआ बन के, फिर असेंबली कैसे आया और एट प्रेजेंट कितना उसका स्ट्रेंथ है। वी हैड सीन टॉक्ड अबाउट द स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर स्पीकर्स का जो सैलरी अलाउंसेस एक्स्ट्रा है वो सब हमने डिस्कस किया था, राइट। फिर जो बिल्स इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा पास हुआ, वो हमने देखा। देन वी हैड टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ कमिटीज। ओके, सो ये हो गया हमारा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। सो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम एक स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। पहले जैसे हमने देखा था अबाउट द गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर देखा, फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर हम हाई कोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। एज पर द सिलेबस हम ऐसे ही 1 by 1 सारा चीज़ें कवर कर लेंगे। फिर एपीएससी वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑल दिस पार्ट्स है इम्पोर्टेंट, तो हम एक एक करके सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके।